बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं हूँ मिस्टर शुजा अंसारी और हम लोग वीक मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी का, जिसमें मैं सुपर हीरोज़ को इनवाइट कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने अपनी एक बहुत बिग इंस्पिरेशन को इनवाइट किया है, माय फादर डॉक्टर शुजा रियाज अंसारी। मेरे आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ आई एम सो पॉजिटिव और क्यों मैं लाइफ को बड़ा अच्छा लेती हूँ, और डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस ही इज द मैन जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट रखा है। क्योंकि इन्हें देख के मैंने कभी इन्हें उदास नहीं देखा, कभी उन्हें परेशान नहीं देखा, बट आई वांट टू नो हिज जर्नी। So, Dr. Shuja Riaz Ansari is a maxillofacial surgeon, a head of the Department of Maxillofacial Surgery in Khyber College of Dentistry, Peshawar. He is a professor and he is my biggest inspiration. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बच्चे? ठीक ठाक? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक ठाक खैरियत से? हाँ। तो सर मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन कराया है, बट आई वांट टू नो डॉक्टर शुजा अंसारी कौन है, उनकी क्या जर्नी है और कैसे वो एक मतलब इतने बड़े मकाम पे पहुंचे हैं और सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं। स्पेशली यू आर द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी, सो आई वांट टू नो हु इज डॉक्टर शुजा रियाज अंसारी। As you said, as you introduced me, right? I am Professor Dr. Shuja Ansari, maxillofacial surgeon at Department of Khyber College of Dentistry, Peshawar, right? And still working there, right? And I worked in that department till 28 or 29 years about, right? So my journey really started from my childhood, right? And when I was 1 year old. And at that time I got polio, because of which my right leg became post-polio weakness, because I was unable to walk properly in my childhood, right? So at that time, as you know, that a person with some sort of the disability have to face many problems, just like playing with the other children, walking and running, etc., right? But with the time, when I became a 6-year-old, then I got operated by some surgeon, and because of that, I got some improvement in my leg, for which I became able to walk a little, right? But still that I was unable to go to the schools. So my parents in that time, they admitted to a nearby school, which was a girls' school by that time. But they were our family, so they allowed to me sit there. But with the time, when I get further improvement, I go to the other school, right? And from that, I started my proper, what you call it, studies from prep, KG, etc. to the other line. And still that I improved, and when I'm grown up further, I don't think the year, but I got another operations, which make me further able to walk. But I started first walking with the arches. You know what are the arches? You just, and then बैसाखियां जिनको कहते हैं, right? And then I start walking with them, but I just didn't give up, and I just walked and just left these arches and came under a stick. And at that time, they had just made me a heavy type of boot, which was very, very heavy for me, very difficult to walk with that. But in the meantime, when I started walking and I could manage myself, so I got admitted in the St. Mary's High School, Peshawar, in the 8th session. And I especially got a permission, because these schools, they does not allow people from KG to it, but especially that was my ideal, and my teacher, that was Brother Cletus, right? He was from Australia, and he was my ideal as well. So he got me admission, but at that time it was very difficult to cope with the other students, because I had very deficiencies, particularly the English. But later on, I got adjusted with it, and in the second exam, I was stood second in the class. So from that time, I started and got enthusiasm to do something in the future. That's such a what else you can ask from? Yes, sure. Please go ahead. So from that, when I'm in St. Mary's, so I studied 3 years in the St. Mary's. I got very good friends from them, and we studied very, very hard and got very good marks in the metric. And then I got admission in the Edwards College, Peshawar. From here, we did my FSC or pre-medical in
intermediate, right? And in that I got very good marks, but unluckily I couldn't got admission in the MBBS. That was on the margin. And then I was supposed to join the BDS. It was only the 1 mark from which I could not admit in the MBBS. But I was not worried about it. When I went to the hospital, the dental hospital, I saw that and I got impressed. So after that, I said that I will continue studies. After 6 months, I got admission in the MBBS, but I didn't choose that, and I continue with my BDS studies. And in that time, but I graduated from that, so I have got gold medal in the 3 years and a silver medal in second year. And on the whole, I was declared as the best graduate of the University of Peshawar, best graduate of the Khyber College, Khyber Medical College. At that point, it was the Khyber Medical College, not the KCD, right? And I got the gold medal in the final year as well. So I got the 4 gold medal, original gold medal from the University of Peshawar, best graduate, roll of honor, right? And at that I got was allowed and what you call it, an honor, that is a scholarship to study abroad. For that study, I availed in 1989, for which I went to the England. I did 1 MSc in the basic medical sciences from the Eastman Dental College, which is one of the world's biggest dental college in the world, right? So I got 1 MSc there, and the second MSc or MDSc in the oral surgery or oral maxillofacial surgery I got from the University of Leeds. I came back to Pakistan in 1992, and I joined KCD as a dental surgeon. Then I was promoted as a demonstrator, then assistant professor, assistant professor, and now I'm the professor and head of the department. That's such an amazing journey. But, you know, I think, yes, it's an amazing journey. जो देखा जाए लोगों को लगता है बड़ा straight हमने कर लिया. But कभी आप demotivate हुए होंगे? It's not straight. Yeah. Yes. Can you hear me? Yes, I can hear you. कभी-कभी इंसान demotivate होता है environment से वो से. So what keep you motivated to study hard, to be the best person? बस कुछ motivations तो demotivation तो बहरहाल मैं कह सकता हूँ कि मैंने, क्योंकि I'm a very hard working person, ठीक है ना, and मैं हमेशा काम करता रहता था. किसी टाइम पे मैं मायूस नहीं हुआ, मायूस होने पसंद किया. Even that time जब थोड़ा सा मार्क्स इधर उधर कम एवरेज के मार्क्स हैं, मैं मेडिकल में जाना है या डेंटल सर्जरी की तरफ जाना है, तो इसलिए आई हैव डिसाइडेड ऑन एट माय ओन कि मैंने इसको ज्वाइन करना है, ठीक है ना. तो मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ, इस तरह के भी मैं वॉक नहीं कर सकता या प्रॉपर नहीं कर सकता लोगों को कम्प्लीट, आई नेवर फेल. बल्कि मैं तो यही कह सकता हूँ कि आई वाज बेटर देन द अदर पीपल हु आर नॉन व्हाट यू कॉल देम नॉर्मल पीपल. I don't call them normal, I'm the special people. We call them atypical and typical nowadays. But, you know, it's a good thing कि आप demotivate नहीं हुए. But struggles आई होंगी क्योंकि हमारी society इतनी ज़्यादा, you know, it's not good कि proper working system हो या inclusive education, और उस ज़माने में तो बहुत मुश्किल होगा. So from first day of your class, क्या चीजें थी जो आप बताना चाहेंगे या इंस्पायर करना चाहेंगे और इंडिविजुअल्स को? और इंडिविजुअल किस तरह के मैं जिस तरह इंस्पायर होता रहा, इट इज बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स इन द जब आई गॉट एडमिशन इन दिस सेंट मेरीज हाई स्कूल. तो इट इज अमेजिंग कि नो वन, वी वर 60 अबाउट 60 30 in one class and 30 in another class, and we become one another. Nobody, मतलब किसी ने मुझको कभी आज तक अभी तक किसी ने उस टाइम पे कुछ नहीं कहा कि मुझे वो क्या कहते हैं उसको कुछ किया हो या बुली की हो या बुली के अलावा कोई इस किस्म का वर्ड का हो. दे ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड दैट वाज आई वाज एनकरेज. बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट बाज़ दफा मैं हो जाता था कि बहुत ज्यादा मतलब वो करते थे, मतलब उससे लड़ाई करना, उस तरह बॉक्सिंग करना, उससे तरह नाराज होना, उससे जैसा नॉर्मल लोग करते हैं. मैंने कभी नहीं कहा कि नॉर्मल मेरे के अंदर एक कमी है तो मैं ये शायद मैं नहीं कर सकता, बल्कि उनसे ज्यादा करने की कोशिश करता था, जिसके मतलब सारे मेरे पास एविडेंसेस भी मौजूद हैं, उससे मौजूद है, इस तरह मतलब करके जो मेरे फ्रेंड्स अभी तक मौजूद हैं इसके अंदर, ग्रुप के अंदर. तो ये इस वजह से मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, बल्कि लोगों को मोटिवेशन भी होती थी मुझे देखकर. That's such a good thing. ये तो आपके फ्रेंड्स हो गए, but what are your parents' role, your sibling roles? Parents, my mother, जी चीफ, and my brother, माजी सरहदी, ठीक है ना, ये इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया. इसके अलावा मेरे सिस्टर्स भी हैं और ब्रदर्स भी, भाई भी हैं, सब ने मिलकर इनकरेज किया. उन्होंने भी कभी इस तरह नहीं होने दिया कि मुझको कोई डिस्करेज करने की कोशिश की हो, ठीक है ना, कभी स्टडी नहीं कर सकेगा या कुछ नहीं कर सकेगा, इस तरह उस पर नहीं पहुंच सकेगा. दे नेवर थॉट ऑफ इट. उन्हें, मेरी मदर कहती थी कि बस इसने डॉक्टर बनना है ना,
हालांकि मैं खुद शायद इतना इंटरेस्टेड ना हूँ डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन मदर कहती थी, फिर भाई कहते थे, सब कहते भी इसने डॉक्टर ही बनना है, और आखिरकार मैंने उनको डॉक्टर बन के दिखा दिया। ठीक है ना, डॉक्टर भी ऐसा कि जिसमें मैं स्कॉलरशिप भी लिया, गोल्ड मेडल भी लिए, और स्पेशलिटी भी अपनी कायम रखी। और मेरे बहुत, आपको तो एज यू नो कि मतलब बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें तो याद नहीं कि बस जस्ट किया और प्रोफेसर बन गया और टीचिंग की और स्टूडेंट, बल्कि मैंने तो टेक अ पार्ट इन एस्टेब्लिशिंग दैट डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान वन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विद द अदर माय सीनियर कोलीग्स। ठीक है ना, उस डिपार्टमेंट में जो सर्जरीज पाकिस्तान में नहीं होती थी ज़माने में, वो सर्जरीज को इंट्रोड्यूस किया गया। और वो डिपार्टमेंट जहाँ से सिर्फ एक दांत निकाला जाता है, दैट्स नॉट ए मैटर ऑफ एक्सट्रैक्शन के वन टूथ, ठीक है, कि उसको आपने जाके हमने मैक्सिलेक्टमीज, वो पता नहीं आप लोगों को समझ आए या ना आए, लेकिन ट्रॉमा में जो मुंह शू टूट जाता है, ठीक है ना, फिर कैंसर के पेशेंट जिनको उनको रिहेबिलिटेशन की चाहिए होती है, और एस्थेटिक सर्जरी जिसको ऑर्थोगेनेटिक सर्जरीज कहते हैं, फिर आपके क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, इस किस्म की और चीजें जो है ना वो सर्जरीज उधर होती हैं। तो अगर आप मैक्सिलोफेशियल सर्जरी को स्टडी करें, उस डिपार्टमेंट को देखें, तो इट्स वन एंड यूनिक इन पाकिस्तान के, जहाँ पे इस किस्म की सर्जरीज और जगह भी हो रही है, नहीं कह सकते, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में उसका इनिशिएटिव लिया और उसको इस्टेब्लिश किया। आफ्टर डी मोंटमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के बाद मेरा KCT का नंबर जो है पाकिस्तान में आता है। That's such a great... sometimes we can say it is the one in the Pakistan. अभी भी जो हम पिछले हमारी वो recognition हुई थी PMDC में, तो it become first, got highest number all in the Pakistan, institute first in all categories of the dental institutes in Pakistan. ये तो बहुत ग्रेट है। ये तो आपके पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का हो गया, बट उस्ताद कैन मेक यू, उस्ताद कैन ब्रेक यू। Yes, I have got very good teachers. From, one can say, from the very in the from the Saint Mary brother says he is still there. He's running his own, well, he's Saint Francis, and now he was very friendly and he was very encouraging. Particularly, he took me to the grounds. You cannot play just to become a goalkeeper. You stand there, just stop the football, right? If you cannot run, you cannot take the hockey, just stand in the goalkeeper. And first time I remember that he could beat me a short putt, and that is very difficult to throw a short putt, but I have thrown a short putt as well. Yeah, that's so great. And that was encouraging. And besides that, there is Brother Malcolm, who was recently transferred from Australia, New Guinea. I think now he's near Australia, I think, New Guinea, Papua New Guinea. He was transferred to Pakistan, and he was just my friend, and I must learn most of the English from him, because he tell me to stand in the class and just tell a story. So from that, I learned how to tell a story to the other people. That's such a great... Any other thing you want to ask? Yes, that's such a great thing from a person who is Urdu speaker, become a bilingualist person, and so confident. What makes you so confident about yourself? It is, I think it is the belief in Allah. So I was not a very good Muslim. Still, I'm not a very good Muslim. You cannot say that I'm a practicing Muslim, but still I have belief in Allah and His Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'm trying to follow them as much as you can. You can see my beard, which is just a few years ago, but it is just or again to resemble themselves with some sort of the sunnah or like that. I'm not a good Muslim. I don't have a very good understanding of these people, but I can say I believe in Allah and I just believe on my Rasul sallallahu alaihi wasallam. These things give me a very encouraging. That's a very interesting thing, because you know, जब मुसीबत आती है, we lose faith. So आपका faith इतना strong कैसे है? But it is because of belief in Allah, because everything is from Allah. If it's a good or it's a bad, things coming from there, there's from Allah. Just you have to do the sabr and salat. That's the only two things which give you a very encouraging, make you a very encouraging person. That's really nice. Acha, ये तो हो गया. अब being a person with who are differently able, I won't say special needs, but different from the society, और जिनकी ज़रूरतें different होती हैं. What are the message you can give to our parents जो कि बड़े demotivate हो जाते हैं, जिनके मतलब being a parent myself of a child with special need, what will give message कि हम क्या करें कि हमारे बच्चे इतने ही confident हो, अपने आप मतलब अपनी disability से वो shyness ना feel करें, बल्कि confidence रहें. कॉन्फिडेंस है मदर ने या पेरेंट्स ने या दोनों ने उनको देना है, बिकॉज मुझे तो मेरी मदर ही नहीं दिया. एज यू नो माय फादर वाज डेड व्हेन आई वाज अबाउट
in class 1 I think, ठीक है. तो most of the confidence are given by my mother as well as my brothers, ठीक है ना. आप उसको छोड़ दें बच्चे को कि उसने क्या करना है, उसको करने के लिए करें कि उसको इनकरेज करें, जो कुछ वो कर रहा है खुद वो करें, ना कि उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करें, ठीक है ना. कि भाई आपने ये कर लिया, उसको आ रहा है तो उसको पकड़ना है, उसको स्पेशल किया. डोंट गिव जस्ट कि उसको मदर ने तो कभी इस तरह नहीं किया, और इसी तरह का जाओ नीचे से जाओ ऊपर चीज ले आओ इस लो, हालांकि डिफिकल्टी थी, लेकिन इस वजह से आपके इंकरेजमेंट उसके अंदर आपके अंदर आती है, बच्चों के अंदर, सॉरी इसके अंदर. तो पेरेंट्स को चाहिए उनको नॉलेज खुद अपना एक नहीं कि अपने आपको कल अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, ये बच्चा कैसे हो गया, अभी इसका क्या होगा, ये नॉर्मल चीजें जो आती है ना पेरेंट्स के माइंड के अंदर, ये बच्चा डिसेबल है या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो अल्लाह इसका क्या होगा, ये फ्यूचर में क्या करेगा, ये बड़े होकर क्या बनेगा, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी. ये मोस्ट जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स है उनके दिमाग में आते हैं. ये नहीं कहते कि अभी इसने इतनी लॉन्ग जर्नी रन करनी है, उसको हमने किस किस जगह पे उसको सपोर्ट करना है, कहाँ का सपोर्ट करना है, जहाँ उसको सपोर्ट की जरूरत है, यू हैव टू हिम और हर बट एवर यू सपोर्ट, ठीक है ना. और मेरी सपोर्ट जो है आपको पता है सबसे बड़ी जो मेरे नहीं कहूँगा तो खफा हो जाऊंगा, फिर मैं सुबह अस्पताल में नजर आऊंगा. मेरी वाइफ गॉट मैरिड इन 1991, ठीक है ना, और उसका नाम न लिया. And actually, despite of this joke, she was a really good partner for me for last 30 years, and she also helped me in after I did my post-graduation and I started my practice or my studies there along with my brothers and sisters. She is also one of my what you can mentor like mentor. कि उसने हर लेवल पे हर चीज के ऊपर उसने मेरी help की, even in my promotions, in my establishing my own clinic, in my developing or putting my children. That's a good thing है ना. वो बड़ा अच्छा लगता है आपको मिल जाएगा आज. मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैंने भी जिंदा रहना है 2-4 साल और, तो इंशाल्लाह. That's a good thing. Why you're so witty? It's such a good thing. So what keeps you so witty? अगर आपने आपको निकालना है, आपने किसी से टेंशन से निकालना है, आपको विटी होना पड़ेगा. हर चीज अपने सर पे सवार नहीं करने लगी. हालांकि बहुत सी चीजें मैं भी अपने सर पे सवार कर लेता हूँ, लेकिन बहुत सी नॉर्मल चीजें जो है ना बाकी लोगों को मैं केयर नहीं करता, पहले नहीं करता. कोई मेरे में क्या सोच रहा है, कोई मेरे में क्या बात कर रहा है, कोई मेरे हंस रहा है, इस तरह लोगों को होता है. जैसे आप वॉक करते हैं, ये नहीं कि आपको बहुत ईजी होती है लाइफ एक स्पेशल नीड वाले पर्सन की. आपको अगर कोई नहीं घर में भी नहीं है, स्कूल में भी नहीं है, उसमें नहीं है, तो लेकिन बहरहाल बाहर लोग आपको देख के करते हैं, कोई करेगा, कोई क्या करेगा, क्या करेगा, भाई कैसे चल रहा है, कोई तौबा करेगा, इसके शायद किसी वजह से इसके ऊपर अजाब आया हुआ है, ठीक है ना. तो ये लोगों के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कभी इस तरह या लोग कहते हैं भी इसको वो करते हैं. तो इस तरह आपने डिस्करेज नहीं होना, अपने आप को मत करना. लोग आपको भी कह सकते हैं, आपके बच्चों को भी कह सकते हैं, आपके पेरेंट्स को लोग जरूर कहते हैं इस किस्म का. अगर सामने नहीं कहता पीठ पीछे तो कहते हैं वो बात आपको किसी न किसी तरह पहुंच जाएगी, लेकिन आपने उसको फेस करना है, उससे लड़ना है. जब आपने एक चीज चैलेंज को कबूल किया तो उसको आपने कबूल करना है, ठीक है ना. तो उससे बाद आप इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ. अच्छा, तो बच्चों की बात आती है, तो हाउ आर योर चिल्ड्रन? मतलब क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, या दे आर सो मतलब गुड विद यू? No, never. अगर last from my friends, my brother, sister, husband, my wife, and after at last I come to her to say my children, they were very confident, they love me, they are very confident, ठीक है ना. उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि जस्ट क्योंकि हमारे फादर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है. वो तो सारे बातें बच्चे तो कभी भी फील नहीं करते हैं. दे नेवर थिंक. आई थिंक इट इज नेचुरल के बच्चा बाप कैसा भी हो, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा कौन हो, लेकिन वो बच्चे जो है कभी उसको वो नहीं करेंगे. दूसरे लोग कह सकते हैं बच्चों का एक नेचुरल एफिलिएशन जो है ना अपने फादर के साथ पर्टिकुलरली या मदर के साथ ये होता है. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन एज वेल. दे आर कॉन्फिडेंट. उन्होंने जो स्टडीज की, मेरे ऑल ऑफ 3 में आई गॉट ओनली द 3 daughters, नो सन, ठीक है, बट स्टिल प्राउड ऑफ माय 3 daughters, ठीक है. जो उन्होंने मुझे देखे बस दे आर ग्रेट. बल्कि ग्रेट क्या कहूंगा मैं, दे आर मी बेटर देन माय सन्स अगर होते तो. That's so great. That's so great. I'm very grateful. और एक और बात कहूँ, मैंने कभी भी इसके ऊपर वो नहीं किया, ना शिकवा किया, ना अल्लाह से, ना खुद सोचा, ना दिल में बात भी कभी नहीं आई कि why I got only 3 daughters. ये तो बाद में मुझे पता चला, मैंने हदीस भी सुनी कि जिसकी 3 बेटियों तो सीधा जन्नत में जाता है. मुझे पहले ये पता भी नहीं था. ये तो बाद में जब मैंने स्टडी किया पता चला. मैं तो समझा था कि बीवी के जैसे मैं जन्नत में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे पता चला मैं बेटियों को जैसे जन्नत में चला जाऊं. ठीक है. Seems like your wife is giving you some notes. No, she is not giving you no notes.
That's great. अच्छा, so आप क्या इंस्पिरेशन देंगे उन लोगों को कि जिन्हें पोलियो के कतरे, आजकल मुहिम चली हुई है कि नहीं पिलाने, इट्स समथिंग, क्या पोलियो पिलाना चाहिए, कितना होना चाहिए, ना आप क्या समझते हैं कितनी जरूरी है? एक बीमारी है, बीमारी है जिसका इलाज मौजूद है, वैक्सीन ही उसका इलाज है, और तो कोई इलाज नहीं है। एक दफा पोलियो हो गया तो पोस्ट पोलियो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक दफा हो गया आपके मतलब एक ले गया, दूसरा ले गया, बाज लोगों की बॉडीज भी हैं। इवन मैंने खुद मतलब एम्प्लॉयमेंट्स की हैं डिसेबल लोगों की अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिनकी 2-2 लाख हैं, जो दे स्टिल वर्किंग विद आर्टिस्ट, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कि कुछ कैलिपर्स के साथ चलते हैं, लेकिन ये एक हार्ड लाइफ तो हो जाती है फॉर टाइम, विद एज उनके तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मेरा तो ये है कि जिसको जहाँ को मिले पोलियो कतरे जरूर पिलाने चाहिए, इनको स्प्रेड करना चाहिए। कम से कम एक बीमारी जैसे चिकन पॉक्स, मिजल्स दूसरी खत्म कर दीजिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इवन अपना ट्यूबरकुलोसिस भी काफी हद तक कंट्रोल है, तो इस तरह पोलियो को भी खत्म होना जाना चाहिए, बिकॉज और वैक्सीन ही इसका इलाज है। अब जनाब तो आपके था आज का तो कोरोना भी है, कोरोना की वैक्सीन भी अभी नहीं आई, इसको खत्म के लिए आपको वैक्सीन की जरूरत होगी। तो जब आपके पास एक है तो अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ से मना तो नहीं किया कि आपने करना है, और तवक्कल अल्लाह पे करना है। लेकिन आपने जो दुनियावी चीज़ है, जो मेडिसिन है, जो वैक्सीन है, जिस चीज़ है, या कोई सर्जरी है, इवन नस्तर लगाना, ये भी हदीस में कहा कि फोड़े को नस्तर ही लगाना उसका इलाज है, ठीक है ना। लेकिन तवक्कल अल्लाह पे करना, ठीक है सही जी, ये आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, मुझे ये बताएं, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज कितनी ज्यादा जरूरी हैं फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड? स्पेशल नीड वो डिफरेंट स्पेशल नीड्स पे डिपेंड करेगा रिहेबिलिटेशन कितनी चाहिए। तो अगर किसी को जिस तरह फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसको फिजिकल रिहेबिलिटेशन की कैलिपर्स हैं, वॉकिंग हैं, मतलब फिजियोथेरेपी आजकल बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली पोलियो पीपल। नाउ सर्जरी इज अबेंडेंट, सर्जरीज नहीं करनी चाहिए, इट्स ए फिजियोथेरेपी जिसको मालिश भी कहते हैं, लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस कराते हैं। देन वॉकिंग है स्पेशल ऑन वो उसको क्या कहते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर कैलिपर्स लगा के, तो ये डिफरेंट। और आजकल तो मतलब इस तरह के पोलियो को उसको कहते हैं हम ऑस्टियो नहीं डीओ कहते हैं ना जी, जिसमें अगर लेग थोड़ी सी छोटी भी रह जाए तो उसको हम वो थोड़ा सा बोन के लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं, तो उसका पेशेंट का वो जो है ना बराबर हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट है, रिहेबिलिटेशन है। अब डिफरेंट फिजिकल डिसेबिलिटीज ये तो अगर इसके अलावा कोई डिसेबिलिटीज हैं या स्पेशल नीड्स हैं तो उनको उनके मुताबिक फिर डील करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी था उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, डेफिनेटली एज फार एज पॉसिबल रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए लोगों की। उनको निकल चाहिए, उनको प्रोफेशनली, उनको उस तरह हर तरीके की राह से उनको रिहेबिलिटेट करनी होनी चाहिए। जो डिफरेंट जगह पर होंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर, डिफरेंट हर जगह खैर होंगे ना, किसी को मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, स्पीच का प्रॉब्लम है, हियरिंग वो अलग से होगी डिसेबिलिटी। किसी का लेफ्ट लिप पैरलेट है, वो तो हमें पता होता है कि हमें किधर उसको रिहेबिलिटेट हम किस तरह कर सकते हैं, वो तो पैदा होने के साथ ही उसको रिहेबिलिटेट हमें करना पड़ता है, ठीक है ना। एक्सपेंड जो डेंटल सर्जन या हमारा काम है उसे वो लगाना, इम्प्लांट लगाना, एक्सपेंड करना उसको पैलेट को, फिर बाद में उसको पैलेट को एक क्लेफ्ट को क्लोज करना, इस तरह डिफरेंट वो तो उस तरह करेंगे। कुछ मेडिसिन से, मेडिसिन तो खैर नहीं होती इसके अंदर, आप सर्जिकल कह सकते हैं, और बाकी आप जिस तरह आप डिफरेंट तरीके से उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है। सोसाइटी में क्या आपको लगता है कि इंक्लूजन होनी चाहिए स्पेशल नीड्स को, या उनके ड्यू टू देयर उन्हें अपने सेग्रीगेटेड स्पेशल इंस्टीट्यूशंस में रहना चाहिए? मेरे ख्याल से पब्लिक में उनको इंटीग्रेशन फर्दर लोगों के साथ, ये नॉर्मल लोगों के साथ उनको ट्रीट करना चाहिए। अगर कोई स्पेशल नीड नहीं है, कोई मेंटल रिटार्डेशन है उसका, तो आप नहीं कह सकते। लेकिन अगर कोई फिजिकली आपका स्पेशल नीड है या इसके जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम नॉर्मल लोगों के साथ स्टडीज करें, नॉर्मल लोगों के साथ आप एजुकेशन दें, नॉर्मल लोगों में उठे बैठे, बल्कि उनको ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए। दे गो एंड सिट विद अलॉन्ग विद द नॉर्मल पीपल। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी, मैं अपने उनके साथ में टैक्सला जाता था तो उससे भी चढ़ जाता था अपने टूर्स के साथ, ठीक है ना। ये मुझे मतलब मेरा टीचर तो मुझे गोल कीपर बना देता था, ठीक है ना। तो इस वजह से ताकि उनको नॉर्मल लोगों के साथ रहेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा, रादर देन कि आप उसको एक जगह अलहदा कर दे, भाई तुम तो चढ़ नहीं सकते, तुम चल नहीं सकते, भाई इसको ना लेके जाओ इस तरह। तो ये चीज नहीं करनी, ठीक है ना। ये इसको मुश्किल फेस आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम तो होती है। एज के साथ ही प्रॉब्लम ऐसे उस टाइम में बंदा गिर भी सकता है, चोट भी लग सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यू हैव टू फेस दीज थिंग्स, ठीक है। तो अपने आप को उनको करना चाहिए स्पेशल नीड्स के पीपल को सोसाइटी के अंदर। मैं तो कहता हूँ उसको क्या कहते हैं, मर्ज कर देना चाहिए, जम कर देना चाहिए उनके। स्पेशल नहीं कहिए ओ ये तो इस तरह है तो ये उनका तो इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये चीजें तो स्टिल तक रहेंगी।
क्योंकि जाहिर बात है आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को इसीलिए आपने फेस करना कि लोग आपको अपनी तरह नॉर्मल नहीं समझेंगे, ठीक है। लेकिन आपने लोगों को, सोसाइटी को चाहिए, जैसे आप लोगों जो लोग काम कर रहे हैं इन लोगों के बारे में, तो उनको चाहिए कि इस किस्म की सोसाइटी में उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेट। हाँ, नहीं उनको जाके लोगों को इंकरेज करना चाहिए इस किस्म के लोग जो आप लोग कर रहे हैं, जैसे आपने CCCTR लिखा हुआ है ना, तो इस किस्म की मतलब वो होने चाहिए लोगों को। बहुत से लोग कर भी रहे हैं आई थिंक, लेकिन मैं खुद जरा इन चीज़ों से जरा दूर ही रहता हूँ, ठीक है। स्पेशल नीड है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने खुद ही अपने आप को करना है, किसी से मदद नहीं लेनी, किसी के खुद ही अपने आप को, और अभी तक किया है खुद ही, तो अभी फर्दर तो शायद मैं इंशाल्लाह ना करे किसी की जरूरत पड़े कि मैं आपको स्पेशल नीड का बंदा जाहिर करूँ, ठीक है या किसी से अनड्यू फेवर लेने की कोशिश करूँ, ठीक है। अच्छा, सोसाइटी में आपको लगता है कि इतनी इंटीग्रेशन आ गई है कि स्पेशल नीड लोग मूव कर सकते हैं? As far as my own self is concerned, इतने तो आ गए, because I'm a practicing doctor. All the people they are coming to me, despite of them they know कि I have a problem, but उन्होंने तो कभी इस किस्म का कुछ नहीं किया कि मुझे कोई problem है या शायद नहीं करता. Even my one of a student, मैं किसका नाम नहीं सकता, we had the problem, but he is still practicing. लोग आते हैं, काम करवाते हैं, चले जाते हैं. इस किस्म की तो मैंने इस किस्म की कम से कम अपनी सोसाइटी है, कम KPK में खैबर पड़ता हूँ, हमें ये नहीं देखा. I don't know about the other people. Even I lived in England as well, studies किया, वहाँ भी मैंने इस किस्म की नहीं कि कोई पेशेंट आपसे इस वजह से ना कराना चाहे. अगर कोई और दूसरी प्रॉब्लम तो हो, लेकिन मैं एज फार एज फिजिकल डिसेबिलिटी या स्पेशल नीड इज कंसर्न, ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से मैंने तो फेस नहीं की और होनी भी नहीं चाहिए. बिकॉज आई हैव सीन अदर पीपल एज वेल, मेरे और दोस्त हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर अपनी उसके अपने काम कर रहे हैं, लोग मतलब उसको करते हैं. मेरे ख्याल से ऐसी तो आपको, चलिए ये तो लोग आ गए, तो क्या वर्क प्लेस में आपको डिस्क्रिमिनेशन कभी फेस करनी पड़ी हो ड्यू टू योर डिसेबिलिटी? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो कभी वर्क प्लेस के ऊपर तो जैसे मैंने इस किस्म का किया, ठीक है. वो अगर वो कंपटीशन में कहीं वो आता है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, मतलब होती हैं, लेकिन दैट वाज नॉट ड्यू टू द फिजिकल डिसेबिलिटी. वो कोई अदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई लीगल प्रॉब्लम या किस किस्म के हो जाते हैं, तो वो तो हर एक के साथ हो सकते हैं, तो नॉर्मल लोगों के साथ भी हो सकते हैं. लेग पुलिंग तो हर एक के साथ है, नॉट ओनली विद सम सॉर्ट ऑफ. मैंने लेग इस किस्म के कम से कम अपनी लाइफ में, अपनी स्पेशलिटी में, अपनी जहाँ मैं डिपार्टमेंट काम, वहाँ मैंने इस किस्म की चीज़ इस वजह से नहीं देखी. अदरवाइज हो सकती है, बहुत से लोग होते हैं आपको लाइक भी करते हैं, डिसलाइक भी करते हैं, एंड नॉट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, इस वजह से नहीं. ठीक, थैंक यू सो मच. अदर डिपार्टमेंट या और लोग करते हो तो आई जी, ये तो आप, you're माशाल्लाह से, you feel माशाल्लाह से बहुत लकी हैं, your faith is so strong माशाल्लाह से, and I feel like you're such a positive person, and thank you for coming to our show. एंड में आप कोई सोसाइटी को मैसेज देना चाहें? सॉरी, रिपीट योर क्वेश्चन. अगर आप एंड में, माशाल्लाह से you're so पॉजिटिव और इतने विटी भी हैं, फेथ भी आपका स्ट्रांग है, सोसाइटी एंड स्पेशल नीड्स के लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहें? To the special need people or to the society? Both. In which these people living, both make a be remain positive, both should remain positive. They don't discourage the people with the special need. उनको discourage किसी को भी नहीं करना चाहिए. Even and then the people with this special need, they should not feel themselves कि वो discourage हो रहे हैं. ठीक है ना, उनको अपने खुद को डिस्करेज नहीं, अगर खुद फील करेंगे तो वो समझे कि सर डिस्करेज हो रहे हैं. अगर कोई ऐसी बात हो भी जाती है तो जस्ट लीव इट गो एंड बी रिमेन पॉजिटिव. जितना जितना पॉजिटिव रहेंगे उतने ज़्यादा वो होंगे. और दुनिया को ज़रूरी नहीं था कि इसमें गमी है, सब कुछ है, आपने हर चीज़ को आपने पॉजिटिवली और थोड़ा सा उसे कहते हैं विटीनेस के हिसाब से उसको भी थोड़ा सा देखने का. ज़रूरी नहीं कि हर बात सीरियस ही करना, बिल्कुल सीरियस होकर बैठ जाए. थोड़ा थोड़ा सा, इवन बिकॉज आई एम ए सर्जन, तो जब हमें सर्जरी करते हैं तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा विटी होना पड़ता है, थोड़ा हंसी मजाक करना पड़ता है, ठीक है ना. तो उसके बगैर आपकी टेंशन रिलीव नहीं होती, क्योंकि वो दैट इज द नीड ऑफ द आपके प्रोफेशन, कि आपने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखना है. ठीक है ना, हमारे को सर्जन के जब सर्जरी हम कर रहे होते हैं, दैट इज नॉट एन इजी जॉब. तो 2-2.5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जब आपने सर्जरी करनी है खड़े हो गए, तो उसके अंदर दैट इज अ वेरी टेंशन. पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो सकती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, पेशेंट बिल्कुल उसमें चले जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है. तो ये तमाम चीज़ों को रिलीव करने के लिए तो फिर बंदे को विटी होना पड़ता है. और वो माहौल है ना, तो नहीं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके पैरामेडिक मिल के आप लोगों को एक खास पर्सनैलिटी बना देते हैं. एंड इट इज द प्रोफेशन, आई थिंक.
जो प्रोफेशन आपने ज्वाइन किया हुआ था। अगर आप अकाउंटेंट होते, चार्ट अकाउंटेंट होते, बैठ के अगर कमरे में काम कर रहे थे तो यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है ना। जब एक कमरे में बैठ के बस ऑडिटिंग कर रहे हैं या अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो फिर आप इतने बेटी ना होते, बस आपका दिमाग होता रहता। तो ये क्योंकि एक ओपन, एक ब्रॉड टाइप की एक प्रोफेशन है जिसमें डिफरेंट टाइप के आपके पास आते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉरी लोग भी आते हैं जो मिलते हैं आपके, हर किस्म के लोगों से आपसे मुलाकात भी मतलब होती है, जैसे पीआर कह सकते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप इसमें ज़्यादा होता है। तो हर किस्म के लोगों से, पेशेंट्स से, उनके एटीट्यूड से, उनकी साइकोलॉजी से आपको डील करना पड़ता है। तो इन चीज़ों के अंदर यू हैव टू बिकम विटी और थोड़ा सा कॉमिक टाइप कह सकते हैं कि आप उनके साथ गपशप लगा लेते हैं। पेशेंट को भी हमने रिलैक्स करना होता है ना, तो रिलैक्सिंग को सीरियस सी बात देंगे बस तुम तो ये हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाए, तो वो तो पेशेंट तो डर जाएगा। तो उसको थोड़ा खास तरीके से, ये कि हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन या पेशेंट को डील करने का एक खास तरीका होता है जो हमें हमारी ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बातें की और मुझे हमेशा की तरह इम्प्रेस किया। एंड थैंक यू फॉर बीइंग माय इंस्पिरेशन। एंड लास्ट में मैं आपको बाबा बोलूंगी बिकॉज यू आर माय बाबा एंड आई लव यू एंड थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, डोंट वरी, इंशाल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, सबको खुश रखे, जिनको कोई प्रॉब्लम है सबको अल्लाह ताला उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कराए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।